So, dear students, now we are going to solve a practice set 4.4. The first question says that market value of one share is rupees 200. एक शेयर की मार्केट वैल्यू 200 रुपया है. रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.3%. ब्रोकरेज मतलब जब हम किसी भी शेयर को बेचने जाते हैं किसी ब्रोकर के ज़रिए, तो वो अपना सर्विस चार्ज ऐड करता है मार्केट वैल्यू में, और फिर फाइनली उस शेयर की परचेज वैल्यू क्रिएट हो जाती है. मतलब मार्केट वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा खर्चा, दैट इज ब्रोकरेज, इक्वल्स टू परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर. तो परचेज वैल्यू में खरीदा जाता है, और जब हम अगर इसी शेयर को सेल करेंगे तो मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज माइनस हो जाता है. ये दो बातें होती हैं. तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. We have to find this purchase value, for which we need the amount of brokerage. So that is why in solution we will find brokerage of one share equals to rate of brokerage plus MV, into, so that is 0.3 upon 100%. Percentage 100 into MV 200. 3 to the 6, so it will become 0.6. Okay, 0.6 or 60. Okay, so therefore purchase value equals to MV plus brokerage per share equals to 200 plus 0.60. So it will be 260 rupees. Done. This is all. Let's solve the next question. Next question says that a share is sold for. यहाँ पे परचेज किया था, यहाँ पे सेल किया है. इसके लिए मैंने दोनों को कंपेयर करने के लिए साथ में लिखा. A share is sold for market value 1000. Brokerage paid is 0.1%. Find purchase value. तो पहले ब्रोकरेज पर शेयर निकालते हैं. Brokerage rate into MV. MV is 1000 and this is 0.1%. Percent in 100. Market value is 1000. 20 cancel. 0.1 into 10 becomes 1 rupee. 0.1 into 10 1 हो जाता है. तो ब्रोकरेज हमें मिल गया ये. अभी परचेज वैल्यू ऑन सेलिंग, जब हम सेल करते हैं तो परचेज वैल्यू जाता है एमवी माइनस ब्रोकरेज. तो एमवी कितना था 1000 माइनस 1 रुपी, कितना आ जाएगा 999. बस. So this was the second question. Let's go for the next one. Dear students, now next question is question number 3. Question number 3, it says that table is given, the columns are number of shares, then next is
market value of the shares, then total value that we have to put. Two columns are filled, rest we have to fill. The columns are total value, brokerage at 0.2%, 9% CGST and SGST, and then total value of the shares. मतलब अगर शेयर्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं और उन पे ब्रोकरेज लग रहा है तो पहली रो जो है वो परचेस करने के लिए, तो उसमें MV प्लस ब्रोकरेज होता है, और जो लास्ट रो है उसमें सेल कर रहा है जिसमें MV माइनस ब्रोकरेज होता है। तो हमें इसमें CGST SGST ऐड करके टोटल वैल्यू बनानी है। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व। So number of shares are 100, market value shares is 45. So total value means multiplication of this multiplied by this. तो यहाँ पे हो जाएगा 100 into 45, that is 4,500 rupees. फिर 2% इसका 4,500 का ब्रोकरेज, so 2% of 4,500, that is 2/100 into, so 45 into 2, 90, so that will be 90, but this is 0.2. So because this is 0.2, so here will be 0. So when you multiply this, it will come 9. Okay, so 9 rupees. So let's put here rupees 9. Now CGST 9 rupees का 9% CGST. Brokerage on CGST equals to 9% into rupees 9. Okay, CGST on brokerage. So brokerage आया 9, तो 9 पे 9% लिया तो 9/100 into 9, so 81/100. एक दो के पहले 0 point and then 0, 2 digit, 2 zeros, so 1 2 point and then 0, so that will be 0.81 rupees. So we get 0.81 rupees. Here also 0.81 rupees because both are same. Now total value means let's them add, because we are purchasing, ये बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो सब प्लस होगा. So that is 4,500 plus 9 plus 0.81 plus 0.81. Okay, so 2 carry 1 4 5. So 4510.62. So this is the answer. So I have done the rough work. Similarly, you have to calculate for this. 75 into 2. So 75 into 2 becomes 150. Then 20 becomes 15,000. Right? Brokerage 0.2% of 15,000. That is 0.2. Let's take it 2, so it will become easy. 0.2 can be written as 2/10. 0.2 को हम 2/10 भी लिख सकते हैं, लेकिन परसेंट है तो इंटू 100 इंटू 15,000. 1 2 3 0 कट, 15 2 ज़र
30. So we get 30 rupees. अब 30 रुपीज का 9%, that is 9 upon 100 into 30. 0 0 cut, 9 3 is 27 upon 10, that becomes 2.7. एक 0 है तो एक नंबर के पहले पॉइंट, so 2.7 rupees. ओके, तो यहाँ पे 2.7 हो गया. अब ये सेल हो रहा है, यहाँ पे परचेज था तो सब कुछ प्लस किया था, और यहाँ पे सेल हो रहा है तो इस वैल्यू को छोड़ के ये टोटल वैल्यू के बाद में, इस कॉलम के बाद में जितना भी है यहाँ तक ये माइनस हो जाएगा, ये सब प्लस करके इसमें से माइनस हो जाएगा. ओके, सो लेट्स माइनस दैट. 15,000 30 2.7 2.7. okay, minus 2.7 minus 2.7 minus 30. ओके, सो 50,000 में से ये सारी चीजें माइनस हो जाएंगी. तो 35.40 हो जाता है, माइनस 35.40. तो 15,000 में से 35.40 निकालेंगे तो 0 6 becomes 9. 9 minus 5 4. This is also 9. 9 minus 3 6. This is also 9. 9 minus nothing, then 9. It becomes 4. This 14964.60. So this is the value we get. Only we have to remember when we are selling, so these things will be minus. So that's it. Let's go for next question. Dear students, now question number 4. It says that Srimati Desai sold shares of face value 100 when market value was 50. Market value जब 50 था तो उन्होंने शेयर्स बेचा जिसकी फेस वैल्यू 100 थी, एंड रिसीव्ड 4988.20 पैसे. इतना पैसा उनको मिला, उन्होंने शेयर्स को बेचा और इतना पैसा मिला. जब हम शेयर बेचते हैं तो हमारे पास मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज होता है. तो अभी हमारे पास ब्रोकरेज अमाउंट नहीं पता है, सिर्फ परसेंटेज पता है. यहाँ पे 0.2% प्लस जीएसटी दिया है. तो सेलिंग प्राइस अगर एक शेयर का हम ढूंढने जाएंगे तो पहले तो एक शेयर का निकालना पड़ेगा, फिर बाकी का हम बता सकते हैं. ठीक है, तो और कितने शेयर्स हैं वो हमें नहीं पता, वही ढूंढना है. हाउ मेनी शेयर शी सोल्ड. तो अगर हमें एक शेयर का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा तो उसको हम नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वैल्यू मिलती है. टोटल वैल्यू गिवन है तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे. चलो सॉल्व करते हैं. हमें ढूंढना है नंबर ऑफ शेयर्स, तो हम सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बी एक्स. अभी गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू ₹50, ब्रोकरेज रेट equals to 0.2%, GST rate equals to 18%. Therefore, brokerage of one share कितना अमाउंट बनेगा, परसेंटेज दिया है ना, तो अमाउंट कितना बनेगा एक शेयर का ब्रोकरेज, that will be 0.2 upon 100 into MB 50.
51 था, 52 था, फिर 21 था, 0.1 रुपीस, 0.1 रुपीस, ये एक शेयर का प्राइस हो गया। अभी इसके ऊपर जीएसटी 18%, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज ऑफ वन शेयर इक्वल टू 18% इंटू एक शेयर का 0.1। ठीक है, सो you can write 0.1 और 0.10 also, आगे कुछ नहीं है तो इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, 18 इंटू 0.10 इट्स 18 इंटू 1.10 is 0.018, okay, 0.018 ये इसका आंसर हो गया। तो हमें जीएसटी मिला इस ब्रोकरेज पे इतना, 0.10 is our brokerage per share, GST is this much. Now what is selling price? Selling price of one share, एक शेयर का सेलिंग प्राइस होगा मार्केट वैल्यू माइनस जीएसटी प्लस ब्रोकरेज, so that is ₹50 minus 0.10 plus 0.018, that becomes 0.118, 0.118। तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ रफ में करके देखते हैं। 50 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 0, 0.118 माइनस करो, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 9 बन गया, 9 माइनस 1 8, यहाँ पे 9 बन गया, 9 माइनस 1 8 पॉइंट, यहाँ पे 0 था तो 9 बन गया, कम 9 कम्स हियर, यहाँ पे 5 था तो 4 हो गया, 49.882। So we get 49.882 रुपीस, ये एक शेयर का प्राइस हो गया। अब ये रफ वर्क है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के लिए सेलिंग प्राइस हमें मिला क्या है, मतलब श्रीमती देसाई को बेचने के बाद में ये पैसा मिला था, तो इसको हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, तो उनको कैसे मिला, जितने भी शेयर्स थे इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो एक की प्राइस में नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू वैल्यू ऑफ वन शेयर। वन शेयर का वैल्यू हमें मिला 49.82, तो ये चीज तो गिवन है, दैट इज 49.88.20। नंबर ऑफ शेयर्स हमने सपोज किया x, तो यहाँ पे लिखा x अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर इज दिस मच
ठीक है, ये इंटू है, अपॉन नहीं है, इसके साथ में इंटू है, तो इंटू 1 शेयर का वैल्यू कितना 49.882, तो ये x यहाँ पे रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। अब देखोगे कि 1 टाइम में मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम नंबर आएगा, ठीक है, लेकिन अगर 10 टाइम में करूंगा तो एक जीरो वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 10 करूंगा तो ये इक्वल्स टू x, तो 49, ये क्या है 4988 इंटू 20, सो 49 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई गेट दिस मच, सो दैट विल बी द आंसर। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे मिलेगा 498.82, 498 पॉइंट, तो 8 के बाद पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे 88 के बाद चाहिए, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 4988.20, ठीक है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मुझे ये आंसर मिलेगा, तो इसको लिखो 1 जा और इसको लिखो 100 जा, तो x इक्वल्स टू मिल गया 100। x क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स sold by Desai. This is the answer. Okay. So hope you have understood. There are calculations of decimals, तो उसमें confuse मत होना, आराम आराम से करोगे तो समझ में आ जाएगा और easy है। Dear students, question number 5, a bit lengthy question, and there are 2-3 transactions involved, because of which you may find it confused. So I have given it as a homework, so you try it, and for your help I have given the hints over here, what you have to find first, then next, then next, then next, okay, and then try to find out the solution. Hope you will try and do it. If not, please let me know, I'll solve it out again for you. Okay, so thank you very much for your cooperation. It was practice at 4.4, and God bless you, keep practicing.